Okay, so in our first lecture, we had completed the two different parts of our chapter. These are the what is the applied history, and second one the applied history and research in various field. Okay, so now you all are aware what exactly is the applied history and how in different fields this applied history is applicable and very much essential. Okay, so जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा, आप अगर देखोगे फर्स्ट पेज पे हमारे टॉपिक के हमारे चैप्टर के फर्स्ट पेज पेज नंबर 15, हमें अप्लाइड हिस्ट्री जिसको हम पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है येलो बॉक्स में. एक बार हम उसको गो थ्रू कर लें, राइट, तो ताकि हमारे जो पॉइंट्स है उसमें भी क्लियर हो जाए. सो टॉपिक सेज पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग्स. व्हाट आर मिसगिविंग्स? मिस थिंकिंग्स. जैसे बोलते हैं ना, हमारे मन में बहुत सारे गलत ख्याल होते हैं अबाउट दी हिस्ट्री. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लोग ऐसा मानते हैं कि हिस्ट्री की ज़रूरत हमें क्या है, पास्ट के बारे में हमें क्यों जानना है, हमें कोई लेना देना नहीं है हमें पास्ट के बारे में से. बट अगेन इट्स अवर डे टू डे लाइफ, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डे टू डे लाइफ. People have lot of misgivings about the practicality of the knowledge of history. For example, history is usually thought. It is a given example. What people think, what thought they have in their mind. People thought that as a field of interest only for historians and students wishing to pursue higher studies in the subject and not pertaining to practical history. So people usually say this knowledge of history is only applicable or useful for such people who are the historians or who are doing the research, or the student who are pursuing the higher studies in history. They have a practical benefit of the history. As history as a field of knowledge does not have any applicability to economically productive fields, etc. So people have a thought that the knowledge of history doesn't have any practical value in our life, or it gives helps to any economic value. What is economic value? Any earning. But again, if you have the knowledge of history and you have done a good research in history, then you have a lot of opportunity in the field of history that we are going to learn, or that we are going to take knowledge in our coming chapters. How can be history knowledge be useful in different professional fields? Okay, so public history helps to overcome such misgivings. So that's we learn how public history can be help us to overcome such misgivings and make history meaningful in everyday life, connecting people to history. Okay, that's why this applied history or public history is very much important. There are many universities all over the world that have a separate department. They have a separate field where people or students can have a good scope to do a various research in such field. There are many universities abroad where various courses in public history are offered. Such famous institute in our country also, one name is given here. Srishti Institute of Art, Design and Technology is an institute at Bengaluru, Karnataka. You can underline this statement. It can be helpful as a blank also, right? ऐसा blank आ सकता है ना कि Srishti Institute of Art, Design and Technology is an institute at dash. This institute has an independent department named Center for Public History. This department has taken up various projects and research in the field of public history. Okay, understood the importance of public history, why it is essential to know, to learn about it. Okay, जिससे हमारे जो डाउट्स हैं हिस्ट्री को लेके वो क्लियरिफाई हो सके. हमारे माइंड में जो मिस थॉट्स हैं कि हिस्ट्री पढ़ना तो वेस्ट है, हिस्ट्री की नॉलेज तो सिर्फ उनके लिए है जो रिसर्च कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके लिए काम है. ऐसा नहीं है. इट इज़ सेम यूजफुल फॉर अस ऑल्सो, ताकि हमें भी हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे पास्ट के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन पता चल सके. ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर थर्ड पार्ट, दैट इज द अप्लाइड हिस्ट्री एंड अवर प्रेजेंट. ओके, अप्लाइड हिस्ट्री किस तरह से इंपॉर्टेंट है हमारे प्रेजेंट में. पीपल ऑफन आस्क, व्हाट ऑफन, अक्सर, हमेशा बोलते हैं, अक्सर पूछते हैं अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री. अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि लोगों के थॉट्स क्या होते हैं और किस तरह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं.
People often ask about the practical value of history. The answer to the question about the nature of applied history answers this question as well. The visible and invisible relics of the past exist in the present. ऐसे बहुत सारे visible और invisible relics हैं. What do I mean relics? Relics means ancient history, past, जो हमारे आज भी कुछ हमारे सामने प्रेजेंट है, जो कुछ विजिबल है, कुछ इनविजिबल है. विजिबल में आप बोल सकते हो जो ये हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, राइट. इनविजिबल आप हमारे ट्रेडिशनल कल्चर दे सकते हो. हमारे कंट्री आप देखते हो अलग अलग रिलीजन होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी होते हैं जो अलग अलग ट्रेडिशन को, अलग अलग बिलीव्स को फॉलो करते हैं, जो विजिबल तो नहीं है बट कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी. What a nurture, we have some kind of curiosity. What a curiosity? अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस किया था. Curiosity means excitement, to learn more, to know more, attraction towards them. We wish to know more about their history because they represent the creative thoughts and tradition of our ancestor. हम पास्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर क्यों करना चाहते हैं? ताकि हमें अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता चल सके, हमारे पास्ट के बारे में पता चल सके. अगर समझो आपको याद होगा, अगर आपने अभी रिसेंटली आपने तानाजी मूवी देखी होगी तो आपको वहाँ पे पता चला कि ये एक वॉर की स्टोरी थी जहाँ पे इतने हमारे महान वॉरियर्स होते थे पास्ट में, जिन्होंने अपने टेक्नोलॉजी से, अपने ब्रेन वर्क से ऐसे अनएक्सपेक्टेड काम किए जो अचीवेबल नहीं थे. तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी जब स्टोरी सुनते हो, जानते हो, तो आपको उनसे रिलेटेड बाकी चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे कि हमने देखा कि ये जो तानाजी स्टोरी मूवी हमने देखा वो कहीं ना कहीं कोंडाना फोर्ट के ऊपर बेस्ड था, राइट. तो आपको ये भी जानना बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि कोंडाना फोर्ट की हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या है, आज के टाइम पे उसकी क्या कंडीशन है, ये किस लोकेशन में प्रेजेंट है, राइट. सो दिस ऑल ब्रिंग्स मोर एंड मोर क्वेश्चन इन अस. इट इज़ अवर हेरिटेज. सो ये सब क्या है? हमारे हेरिटेज. व्हाट इज हेरिटेज? ट्रेडिशन और कल्चर which survive for a long period, right? What is heritage? Tradition or culture that lasted for a long period, and that should be kept safe, that should be preserved. हम कैसे बोलते हैं अक्सर? कंजर्व वाटर. कंजर्व वाटर मीन्स वाटर को बचा के रखो, वाटर को वेस्ट होने से बचाओ. So in the same way we need to preserve and conserve our heritage. It helps in building our identity. So ये सब जो हमारे पास्ट के नॉलेज है कहीं ना कहीं वो हमारी आइडेंटिटी भी बताते हैं. इट हेल्प अस टू बिल्ड आवर आइडेंटिटी, लिंक्स आवर आइडेंटिटी. द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विथ आवर ओरिजिन. Hence it become necessary to preserve and conserve it for future. So it is very much important we should preserve it, conserve it for our future. What is preserve? To keep safe. Conserve, protect it, avoid wasting, right? For our benefit as well as for the benefit of future generations. Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people. What is accessible? Make it understand, to know. These knowledge brings information about the past, our culture, our tradition, so that people can also understand the concept, the way they had been transformed from the past, right? Heritage management creates opportunities of employment. As I already told you, there are so many scope in the professional opportunities with the help of the learning history, applied history. So उनमें से heritage management भी है. आप देखते हो heritage management, जैसे आप दुनिया भर में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, पुराने लाइब्रेरीज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनको मैनेज करने के लिए, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. आप कभी देखते हो रिस्टोरेशन का काम भी होता है. व्हाट इज रिस्टोरेशन? मीन्स टू ब्रिंग बैक इन ओरिजिनल पोजिशन. Will it be possible? It's not possible. But again, we will try to keep them as it is. That is called the restoration. For example, we all know, right? Gateway of India was built by Britishers, right? Our Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus railway station was also built during the period of Britishers, right? So, जो हमारा ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये भी कॉमन स्टेशन है ना बाकी स्टेशंस की तरह. यहाँ पर भी तो ट्रेन ही आते हैं,
But why it is so much important? Because it shows that culture, that period, that kind of heritage. So it's very much necessary to conserve it, to preserve it. और आप देखते हो ईयरली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे मनी इन्वेस्ट होते हैं इनको रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोरेशन का काम होता है. सिर्फ मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हमारे दुनिया भर में, हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको रिस्टोर किया जाता है, सो दैट दे शुड बी इन देयर ओरिजिनल कलर, देयर ओरिजिनल शेप एंड ओरिजिनल फॉर्मेट, राइट? So, heritage management creates opportunities of employment. In brief, in short, applied history can be described as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of our future. Understood the concept? Understood the link between applied history and our present? Okay, let's move to the next part, that is the management of cultural and natural heritage. How this cultural and natural heritage can be managed. As we already discussed about heritage, what is heritage? Heritage क्या होता है? Heritage जो होते हैं इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही वास्ट है, बट अगेन इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू इम्पॉर्टेंट वे और पार्ट, यू कैन से दैट इज अ कल्चरल एंड नेचुरल. अब कल्चरल नेचुरल फर्क क्या है? सिंपल बताएं. कल्चरल मीन्स मैन मेड, नेचुरल मीन्स विच इज नेचुरली ओरिजिनेटेड, राइट? जैसे कि अगर कोई वैली है, राइट, कोई ऐसे रॉक है जो नेचुरली कार्व्ड हुए, जो नेचुरली उनके पोजीशन और लोकेशन में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, सो दीज आर कंसीडर एज हेरिटेज. तो गवर्नमेंट या लोगों की कोशिश होती है कि उनको प्रिजर्व करके रखा जाए. इन द सेम वे कल्चर हेरिटेज आर दी मैन मेड, जो हम ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं और हम उसको कोशिश करते हैं कि काफ़ी सालों तक, जनरेशन बाय जनरेशन, उसको हम संभाल के रखें. ओके, सो लेट डिस्कस अबाउट द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द कल्चरल हेरिटेज. इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन. Cultural heritage is a form in the form of human creation. It is of two type, tangible and intangible. What is a tangible and intangible? Tangible और intangible को आप simple बोल सकते हो. Tangible which we can touch, okay? Intangible which we cannot touch but we can feel. जैसा मैंने बताया ना, हेरिटेज मतलब सिर्फ कोई मॉन्यूमेंट या कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन या कोई गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट जैसा कोई एक डोर नहीं है, बल्कि जो हेरिटेज होता है वो हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस भी होते हैं, राइट? आज भी आप देखते हो जब भी हमारे फैमिली में कोई शादी होती है या जब भी कोई हमारे घर में कोई ऐसा पूजा होता है, तो हम अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, राइट? सो ये भी जो है कितने सालों से चला आ रहा है और फ्यूचर में भी हम कोशिश करते हैं कि आने वाली जनरेशन्स भी इस कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करें. इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन. इट इज ऑफ टू टाइप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. सो टेंजिबल विच कैन बी टचेबल, इनटेंजिबल विच इज नॉट टचेबल. ओके, आप इसको अंडरलाइन कर लो, ब्लैंक में भी आ सकता है. टू टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, तो अंडरलाइन कर लो. इट कैन बी टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल. सो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल के एग्जांपल्स देख ले, थोड़ा डिस्कस के थोड़ा और देख लेते हैं. दीज टाइप टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ओके, दीज टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशिएंट साइट्स, buildings, artifacts, manuscripts, sculptures, painting, etc. So these are the things which we can touch. We can touch different ancient sites. Sites means location, buildings, artifacts. What are artifacts? Man-made articles. Artifacts means man-made articles. Manuscripts, handwritten literature, sculptures, statues, paintings, etc. Next is intangible, which cannot be touched but which we can feel and which can be followed. Intangible cultural heritage. These type of cultural heritage includes the following thing. First, oral traditions and their language. Oral tradition and language. Does you got any training to learn your mother tongue? Anyone? No, never. मदर टंग ये जो हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चर होता है, इसको हम ईजिली अपने आप अडेप्ट कर लेते हैं. इसके लिए हमें कोई स्कूलिंग की या हमें कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट?
ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, आप देखते हो बीन हिंदुज्म, हिंदुज्म फॉलो करने वालों का अपना एक प्रीचिंग का तरीका होता है, प्रीचिंग मतलब पूजा का तरीका होता है, इस्लामिक का अलग होता है, कैथलिक का अलग होता है, राइट। तो सब ये सब जो होते हैं उनके ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं। सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स और सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, सबके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने कस्टम्स होते हैं। स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जैसा आप देखो अरबिक आर्ट अलग होता है, यूरोपियन आर्ट अलग होता है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग अलग होता है। इस तरह से आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट देख सकते हो। सर्टन ट्रेडिशनल स्किल, कुछ भी ऐसे ट्रेडिशनल स्किल्स होते हैं जो हम अपने ट्रेडिशन में सीखते हैं, जो हमें ऑलरेडी आते हैं। जैसे कि आप ब्राह्मण्स को रिचुअल्स होते हैं, उनको जो हमारे ट्रेडिशंस में मंत्र होते हैं, उनको वैदिक नॉलेज होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल स्किल। क्षत्रिय जो होते हैं उनको वॉर टेक्निक्स पता होते हैं, they know how to protect their territory, how to involve in a war, right? So these are traditional skills. Communities, groups who represent such traditions, customs and skills, these are comes under the non-tangible cultural heritage. Okay, next is natural heritage, which are natural. The concept of natural heritage gives importance to the thought of biodiversity. It includes the following things. What are included in that? Flora and fauna. So this is our biodiversity, हमारा environment, हमारे surrounding. Flora means plant life, fauna means animal life. So these are the natural thing, right? ऐसे बहुत सारे plants होते हैं, वैसे बहुत सारे animal होते हैं जिनको preserve करना, conserve करना जो होता है बहुत important होता है। आप देखो बहुत सालों से हम ऐसा सुनते हैं save tigers, right? We all know tiger is a wild animal which is dangerous for the human kind. सोसाइटी में उसको नहीं रख सकते हैं, राइट? ह्यूमन लाइफ में उसका कोई वो नहीं है, बट अगेन इट शोज अ बायोडाइवर्सिटी, राइट? सो दीज आर द थिंग्स, नॉट ओनली आई एम गिविंग टाइगर एज एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जिसको कोशिश होती है कि हम उसको बचा के रखें। तो फ्लोरा फौना प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। आर इकोलॉजी, व्हाट इकोलॉजी? लिविंग एनवायरनमेंट एंड जियोमॉर्फिक। जियोमॉर्फिक यू कैन से और अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ में न जाने ऐसे बहुत सारे क्रिएशन है, नेचुरल क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, जो मैन मेड नहीं है, जिनको देखना, व्यू करना एक अनएक्सपेक्टेड फीलिंग आती है, राइट? आप देखते हो जैसे कि आप देखो वाइट सैंड के डेजर्ट होते हैं, हमने ऐसे देखे हुए कि जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं। सो दीज आर द नेचुरल्स विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन, सो दैट फ्यूचर्स के लोग भी देख सके ना, आने वाले जनरेशन भी देख सके। तो ये सबको जो है हमें हेरिटेज को संभाल के रखना है। फ्लोरा, fauna, ecology and geomorphic characteristics which is crucial for sustaining the flora and fauna of a particular region. It is essential for the benefit of future generation to preserve our heritage. So it is very much important so that we should preserve it for our future. यूनेस्को, रिमेंबर हमने 9th में पढ़ा था यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब के बारे में। सो दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट दैट वर्क अंडर द यूनाइटेड नेशन। यूनेस्को, यूनिसेफ, इनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग फील्ड में काम होता है। जैसे यूनेस्को जो होता है ये एजुकेशन, ये सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। दुनिया भर में जो हमारे कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट होता है उसको सपोर्ट करते हैं। सो उसी तरह से यूनेस्को का जो होता है ना, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि दुनिया भर के जो साइट्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व करके रखे, संभाल के रख सके। तो यूनेस्को के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं अलग अलग लोकेशन, अलग अलग कल्चर को लेके। उनके बेसिस पे वो अलग अलग साइट्स को नेशनल और वर्ल्ड लेवल पे उनको कैटेगराइज करते हैं। कुछ हेरिटेज जो होते हैं वो नेशनल हेरिटेज होते हैं, और कुछ हेरिटेज जो होते हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज होते हैं। जैसे हमारे अपने कंट्री में, हमारे अपने महाराष्ट्र, हमारे अपने स्टेट में ऐसे बहुत सारे हेरिटेज हैं जो वर्ल्ड लेवल के भी हैं और नेशनल लेवल के भी हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसका देखेंगे, लिस्ट भी दिया हुआ है जो आप एक बार रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगा। और इनमें से बहुत सारी जगह पे आप खुद विजिट किए होगे, आपको पता होगा कि उनकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। ओके, सो यूनेस्को, the global organization, has announced some directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage. On the basis of those directives, list of sites and traditions are declared as World Heritage. Okay? The list of UNESCO's World Heritage
वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट। अब ये जैसे हमें एग्जांपल बताया क्योंकि वी बिलोंग टू महाराष्ट्र, सो ये हमें एग्जांपल बताया कि हमारे महाराष्ट्र जो वेस्टर्न घाट है वो भी यूनेस्को के वर्ल्ड नेशनल कल्चरल साइट्स में इंक्लूडेड है। द कार्स प्लेटो इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। सो दीज आर द वर्ल्ड हेरिटेज। ओके, सो ऑन द पेज नंबर 18 यू कैन सी दिस पेज नंबर 18, ये जो कलरफुल बॉक्सेस दिए हैं अलग अलग, ये हमारे अपने कंट्री के इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जिनको नेशनल या वर्ल्ड लेवल पे हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। सो आप देखोगे नाम भी है, ईयर भी है, किस ईयर में किसको डिक्लेयर किया गया है। तो मैं सारा तो रीड नहीं करूँगा, या आप लोग खुद थरोली रीड करो और कोशिश करो इनमें से मैक्सिमम को आप रिमेंबर याद कर सको, क्योंकि ये आगे जाके ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर जो होता है उसमें तो इसके चांसेस 100% है। आपको एक साइड इंफॉर्मेशन होगा और उसके बारे में होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो जो पहला बॉक्स है दैट व्हाट सेज द इंडियन ट्रेडिशंस डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। अंडरस्टूड? इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड। सो ऐसे हमारे कुछ ट्रेडिशन, कुछ कल्चर जो हमारे अपने कंट्री के, जिसको ओरल ट्रेडिशंस को हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। जैसे हमारे फोल्कलोर्स होते हैं, हमारे गाने होते हैं, हमारे सॉन्ग्स होते हैं, राइट? बहुत सारे रीजनल सॉन्ग्स, हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं जो गाते हैं हम किसी इवेंट पे। सो उनमें से कुछ लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ईयर भी देख सकते हो। ओके, बिलो दैट वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट, कल्चरल वी नो मैन मेड, राइट? तो हमारे इंडिया के ऐसे साइट्स जो वर्ल्ड लेवल के हैं। अंडरस्टूड? तो आप यहाँ पे ईयर देख सकते हो और यहाँ पे उसके नाम भी देख सकते हो। ओके, जैसे आप देखो स्टार्टिंग में आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ताजमहल, ये सब दिए हुए हैं। सो यू कैन अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज साइट्स। ओके, सो दीज आर दी वर्ल्ड हेरिटेज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, दैट्स अ मैन मेड। सो दिस लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, राइट? लास्ट जो हमारा बॉक्स है, ब्लू बॉक्स में आप देखो, इट इज़ द वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। नेचुरल जो नेचुरली है, सो बेसिकली इसमें जो है वो जो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हैं। समझते हो सेंचुरीज? अभी हम लोग जू में जाते हैं, आप जू में क्या देखते हो, एक सराउंडिंग होती है, एक बाउंड्री होती है जहाँ पे एनिमल्स केज में होते हैं। बट सेंचुरीज में क्या होता है, एक सर्टन एरिया होता है जहाँ पे जो एनिमल होते हैं वो अपने अपने ओरिजिनल एनवायरनमेंट या ओरिजिनल एडेप्टेशन में होते हैं। सो उनको हम सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ पार्क भी कहते हैं। सो दीज आर नेचुरल, सो ये नेचुरल साइट्स में इंक्लूड है। ओके, एक ऐसी मिक्स्ड एग्जांपल दिया, दैट इज द अबाउट द नेशनल पार्क, जो एक बताया कि ये मैन मेड भी है और कल्चरल भी है, सॉरी मैन मेड भी और नेचुरल भी है, जिसको थोड़ा शायद मॉडिफाई करके ऐसा कुछ एडेप्टेशन बताया होगा कि जहाँ पे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ सके। अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट साइट्स, what are the heritage, cultural and natural. Okay, turn to the next page, page number 19. 19 स्टार्टिंग में आप देखो एक ये पिक्चर दिया हुआ है, इट्स अ कैलाश टेम्पल। इस टेम्पल की खास बात मालूम है क्या है? आप देख सकते हो पिक में दिख रहा है, बहुत ही ह्यूज टेम्पल है, बहुत ही बड़ा टेम्पल दिख रहा है। ये टेम्पल की खास बात ये है कि ये सिर्फ एक बड़े से स्टोन से बना हुआ है। आप समझ सकते हैं, एक बड़े पत्थर से इतना बड़ा क्रिएशन किया गया है। सो नेचुरली इट इज़ अ हेरिटेज, ये हमें प्रिजर्व रखना है। आप सोचो उस ज़माने में कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं था, फिर भी ऐसे काम किए जाते थे। सो कैलाश टेम्पल ये जो वेल्लोर में है बहुत ही फेमस है, राइट? बिकॉज इट्स कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन। Cultural and natural heritage management is one of the main aspects of applied history. The work of conservation and preservation of the cultural heritage falls under the jurisdiction. Jurisdiction क्या होता है? एक लॉ सिस्टम, जहाँ तक उनके यहाँ लॉ का कंट्रोल होता है। तो सो ये जो काम होता है मैनेज करना, कौन सा? हेरिटेज मैनेजमेंट का। इट कम्स एंड फॉल्स अंडर द jurisdiction ऑफ द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। तो ये याद है आपको, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है, इनके अंडर ये हेरिटेज मैनेजमेंट का काम आता है। रिस्टोरेशन करना, किसी पुराने फोर्ट, किसी पुराने मोनूमेंट को लग रहा है कि वो ख़राब हो रहे हैं, उसके बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, तो रिस्टोरेशन का काम किया जाता है अंडर दीज डिपार्टमेंट्स।
बिसाइड ऐसे और भी कुछ डिपार्टमेंट है जो इनके बेसिस पे इनको सपोर्ट करने के लिए हैं, जैसे कि इंटैच. व्हाट इज द फुल फॉर्म इंटैच? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड. ये लाइन को अंडरलाइन कर लो आप. इट ऑल्सो बी हेल्पफुल एज अ ब्लैंक, या फिर फुल फॉर्म में आ सकता है इंटैक. गिव द फुल फॉर्म ऑफ इंटैक, तो आप लिखोगे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज. The work of conservation and preservation. You all know conservation and preservation, right? Conservation मतलब बेटा हमें चीज़ों को संभाल के रखना है, हमें उनको खराब होने से, हमें उनको वेस्ट होने से बचाना है. एंड प्रिजर्वेशन एट द सेम टाइम दैट दीज जो चीज़ें हमने बचा के रखी है वो सेफ होना चाहिए. से बचाना नहीं है, हमें उनको संभाल के भी रखना है. दैट इज कॉल्ड द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन. वेरी सिंपल. प्रिजर्व मीन्स टू कीप सेफ, कंजर्व मीन्स टू अवॉइड वेस्ट. Okay? The work of conservation and preservation of culture and natural heritage requires participation of experts from various fields. So, in heritage management, we need to follow these steps, preservation and conservation. And for this, we need expert, the people who have the knowledge of history, they had expertise in this field. So, ऐसे लोगों सोचो कितनी professional opportunities है heritage management में. They need to be duly aware of the cultural, social and political histories of the heritage site. और ऐसे लोग जिनको इस हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में, उनके कल्चर, ट्रेडिशन, उनके क्रिएशन के बारे में अगर नॉलेज है, तो उनका इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज होता है, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग देम. Thus, the operations necessary for the conservation, preservation and development of the heritage site can be handled without causing any change in the original state. It is very much important when we carry any heritage management work. So it's our responsibility. We should not change its original state. अगर समझो हम रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर ऐसे कोई पेंट नहीं मार देना कि जो उसकी ओरिजिनलिटी को खराब कर दे. आपने अक्सर देखा हुआ है ताजमहल को रिस्टोरेशन का काम किया जाता है. We all know Taj Mahal is made up of white marbles, precious white marbles, right? दुनिया भर के लोग ताजमहल के क्रिएशन को और उसके ब्यूटी की तारीफ करते हैं. जब ये ताजमहल का रिस्टोरेशन का काम होता होगा, सो डू यू थिंक कि वो लोग जो हम लोग ऐसा मॉडर्न स्प्रेज यूज़ करते हैं, जैसे कोलिन ये सब होते हैं, हम लोग स्प्रे मार के दाग धब्बे निकालते हैं, टीवी में कितने सारे ऐड आते हैं, वैनिश ये सब के, वो यूज़ करते होंगे? नो, बिकॉज दैट में have impact on the shine, that gives any chemical effect on that. तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जाता है. ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनको उस मटेरियल का या फिर उस मार्बल का ये सब का नॉलेज हो, वो समझ सके कि किन चीज़ों पे उन पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो. ओके. द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, ये भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम किसी लोकेशन पे कोई हिस्टोरिकल साइट्स पे अगर हम रिस्टोरेशन का या हिस्टोरिकल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, हमें वहाँ पे लोकल पीपल के थिंकिंग और उनके आइडियोलॉजी को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है. जैसे कि आपको मालूम है, वी ऑल बिलोंग्स टू महाराष्ट्र. वी हैड अ वेरी ग्रेट रेस्पेक्ट और फीलिंग फॉर दी छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट? अगर सोचो जहाँ पे शिवाजी महाराज के फोर्ट्स हैं, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट उन फोर्ट को अगर लग्जरियस होटल्स बनाना चाहे, रिसोर्ट्स बनाना चाहे, सो ये लोगों के सेंटिमेंट्स को कितना फ़र्क पड़ेगा? डज इट हेल्प्स देम? नो. सो हमें ये भी समझना है कि लोग उससे किस तरह से अटैच है, हमें उनकी फीलिंग को इफेक्ट या हर्ट नहीं करना है. Challenges faced by them in the present situation and their expectation can be surveyed in detail. Next, ड्यू प्रिकॉशंस. हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ताकि हम ओरिजिनल चीज़ को ख़राब नहीं कर सके और उनके से हमें नुकसान ना हो. ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल वाइल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ हेरिटेज साइट्स. ओके. नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल. ये भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम ऐसा कुछ रिस्टोरेशन का या हेरिटेज मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो हमें लोकल पीपल की मदद लेनी बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज दे नो द एक्चुअल हिस्ट्री. उन्होंने अपने एंसेस्टर से उस कहानी के बारे में सुना हुआ है, उस क्रिएशन के बारे में सुना है, तो उनका जो एक फीलिंग होता है, एक इमोशनल टच होता है, वो बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है ऐसे सब काम में.
participation of the local people in the project can be facilitated. What they facilitate? Make something possible. बहुत ज़्यादा उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट जो इस काम को आसान कर सकता है. ओके, सिस्टमेटिक प्लान ये तो बहुत ज़रूरी है. अगर हम कुछ भी डेवलप करते तो हमें सिस्टमेटिक प्लान तो करना ही है. हम बिना प्लानिंग के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. सिस्टमेटिक प्लान कैन बी डिजाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड. सो इससे क्या होगा? अगर हम लोकल लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉय मतलब उसमें जॉब में इन्वॉल्व करते हैं, सो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम देम. इसके लिए उनको लाइवलीहुड मिलती है. व्हाट इज लाइवलीहुड? द वेज ऑफ अर्निंग मनी. व्हाट इज लाइवलीहुड? द वे ऑफ अर्निंग मनी. जैसे अलग अलग जॉब, अलग अलग काम करके लोग पैसे अर्न करते हैं, तो ये एक तरह से लोकल पीपल के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ताकि क्योंकि उनको उस कल्चर के बारे में पता है, उनको उस कल्चर की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उनकी मदद से हमारा काम भी बेहतर होगा और कहीं ना कहीं लोकल पीपल को अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे उनको इनकम भी हो सकते हैं. दे कैन सर्वाइव एंड दे कैन गेट द लाइवलीहुड फॉर दैट. ओके, क्लियर क्लियर. सो in this lecture we had completed 2 more topics. So out of 5 we had completed our 4 important topics and we left with the last topic, that is the affiliated professional field. This topic we will continue in our next lecture. Okay, so for now we had done with our 4 parts and we had learned about the heritage, we had learned about the applied history, their importance in the present time, how applied history is related with the different fields. So our concept is very much clear. Okay, so I request you all, please go through this page. Okay, try to remember all these heritages so that we can easily give the answers of the question that based on such heritage. Okay, thank you for now. In next lecture we will continue our 5th part and we will also complete the exercise by taking the answers from the topic. Okay, thank you.